economic cost, there were two concepts, explicit and implicit cost, and explicit costs which are paid in the monetary terms and implicit which are not that much obvious as there are the explicit cost and the difference between normal profit and economic profit and the accounting profit short and the difference between the short run and the long run. And in the last class, we studied in detail the short run production relations and the law of diminishing returns. According to the law of diminishing returns, we saw that the technology or there is some other factor of production which is fixed, and when we add the units of the successive unit of the variable factor, then our output or our the marginal product from last units of the resource will decline. अ- अगर इस तरह ना होता यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ना होता तो हमें एक पूरी दुनिया की खुराक हम किसी एक थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े से लेबर को इंक्रीज करके हासिल कर सकते थे तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन वी अप्लाई द increasing number of the variable factor to the fixed unit of some factor, then your output start declining after some time, and it is called the law of diminishing returns. Then we studied about the short-term production cost concepts. For example, what is the difference between fixed cost, variable cost, and total cost, and what is the relationship between these costs. We saw that total product का कर्व के जो रिलेशनशिप है इससे बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप है डिफरेंट कास्ट कर्व्स के और दोनों ये एक दूसरे के मिरर शेप होते हैं और दे प्रेजेंट द diminishing return to scale when just the margin product increase in the beginning and then it start decreasing and show the diminishing returns to the scale. In beginning there are increasing margin returns, then diminishing margin returns, and then at the end there are the margin negative margin returns. This is also reflected in the shape of cost curves and their relationships as is presented in this diagram. Average fixed cost is higher in the beginning and then it decreases when the quantity increases because it keep on dividing to the larger quantity. And marginal cost it decreases in beginning. इसका ये जो decreasing in beginning है ये जो increasing return in beginning से ये उसको show करता है कि cost शुरू में decreasing होती है और return जो उनसे वो increasing होते हैं and then it starts increasing. And average variable cost is also a U-shaped curve and average total cost is total of average fixed cost plus average variable cost. When marginal cost curve is below the average variable cost curve is decreasing and the marginal cost curve is cut the average variable cost curve at its minimum point from below. जबकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट था उनका ये रिलेशनशिप था कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट द एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम अबव एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. ये जो क्विक क्विज होता है ये हर क्लास जिस दिन ख़त्म होती है उसके एंड पे एक दफ़ा इसे गौर से देख लिया करें और इसके आंसर इधर दिए हुए होते हैं. अगर कोई आंसर समझ फिर भी ना आए कि इसका क्या रिलेशनशिप है उस थ्योरी से जो हमने पढ़ा है तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करें. आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव्स भी ज़ाहिर पार्ट होता है, ऑनलाइन पेपर में ज़्यादा पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है तो ये आपके हेल्पफुल होंगे. कभी भी ये जो क्विक क्विज हैं जितना भी हमने कोर्स किया है इसमें से किसी भी क्विज को छोड़ना नहीं है. टुडे we are going to start the long run production cost. इन द लॉन्ग रन पहले आप जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन आप कास्ट पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में लेके आए कि लॉन्ग रन की डेफिनेशन क्या थी. फॉर अ फर्म लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच अ फर्म कैन चेंज द साइज ऑफ इट्स प्लांट और इट कैन बिल्ड अ न्यू प्लांट. फ्रॉम द इंडस्ट्री व्यू पॉइंट लॉन्ग रन in which new firms can enter the industry and previous firms can leave the industry. Keeping in view हम सपोज करते हैं कि एक सिंगल फार्म है जिसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी ये है कि ये 5 प्लांट्स जो उनकी उनको बिल्ड कर सकती है और वो जो 5 प्लांट्स हैं जिनसे ये आउटपुट हासिल कर सकती है उन्हें बिल्ड करके उनके ये हाइपोथेटिकल हमने एवरेज टोटल कास्ट कर्व जो उनसे प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3 के बिल्ड किए हुए हैं. अब क्वेश्चन ये है कि जब उसकी एवरेज टोटल कास्ट इस प्लांट पे डिक्लाइनिंग एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग तो वो फर्म कब ये डिसाइड करती है कि उसको नया प्लांट लगा लेना चाहिए.
ATC1 is the short and average total cost curve for the smallest of the five plants, and the ATC05, the curve for the largest plant. Constructing larger plants will lower the minimum average total cost to the plant size 3. इसमें it is like that कि एक फॉर्म है, इसकी क्वांटिटी अपने x एक्सिस पे ली और एवरेज टोटल कास्ट इज गिवन ऑन द y एक्सिस. When it starts building the plant, when it is using its first plant, it produces 20 units and cost is decreasing. But after the production of the 20 unit, cost starts increasing along this cost. It may use this plant capacity to the maximum and produce about 28 units. If the increase in demand, अगर उसने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उनको पता है कि जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है, उन्हें इन द लॉन्ग रन इस प्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो उन्हें नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं. बट इफ दे नो कि इन द लॉन्ग रन भी उन्हें 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, देन दे शुड डिसाइड कि दे शुड. So if firm decides to produce 30 units in the long run or the 50 unit and so on, it will decide to install the new plant. कि आपका जो प्रीवियस प्लांट है या आपकी जो भी कैपेसिटी आप उसे एग्जॉस्टिंगली यूज़ करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन शो करते हैं कि मिनिमम से आपकी एवरेज कास्ट बढ़ना शुरू होगी, तो आपने नया प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर लिया जिसकी एवरेज कास्ट है ATC2. जब आप ये प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपको पता है कि इस पे भी एवरेज कास्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. देन फर्म मे इंस्टॉल अ थर्ड प्लांट विच कास्ट एट, जिसकी एवरेज कास्ट है एवरेज टोटल कास्ट ATC3. एंड आफ्टर 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दिस प्लांट कैपेसिटी इज आल्सो एग्जॉस्टेड, and after 50 units average total cost starts increasing. So the firm install a fourth plant and produce 60 units with these first four plants, and after the 60 units average total cost of fourth plant also starts increasing, and firm installs a fifth plant. So in the long run it is possible for the firm to adjust the changing conditions of demand and changing condition of the market. When firm keep up putting or installing new plants, तो हमने उसमें पिछली जो भी एग्जांपल है we assume that there are only possible 5 plants, but in the long run there are the many small plants which a firm can install, and they are in unlimited number. इस तरह अगर आप बेशुमार प्लांट्स जो से हैं उनको ड्रा करके देखें, तो उन सब की जो एवरेज मिनिमम टोटल कास्ट है, उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास आ जाती है एवरेज टोटल कास्ट. ये जो एवरेज टोटल कास्ट है, इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे, एवरेज टोटल कास्ट इज मिनिमम इन द लॉन्ग रन. If the number of the possible plants sizes is very large, the long run average total cost curve approximate a smooth curve. It is called economies of scale, followed by the diseconomies of scale cause the curve to be U-shaped. Economies of scale और diseconomies of scale होती क्या है कि in the beginning when you increase the production and plant, इन बिगिनिंग आप ये देख रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट इन डिक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि जब आप प्लांट साइज इंक्रीज करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपकी पर यूनिट कास्ट डिक्रीज होती है. पर यूनिट कास्ट क्यों डिक्रीज होती है कि कोई भी चीज़ जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो कास्ट है क्वान्टिटी से डिवाइड करते हैं आप, तो विद एवरी इंक्रीज साइज ऑफ द प्लांट आपकी प्रोडक्शन जितनी लार्ज होगी आपकी पर यूनिट कास्ट उतनी कम होगी. लेकिन एक लिमिट आती है जिसके बाद आपके लिए बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया, आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा, आपकी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है, तो अब और तो चीज़ें चेंज हों भी, तो आपकी जो उस पे मैनेजमेंट है, ये किसी भी रीज़न से आप उसको उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाते. तो जब वो एक ख़ास हद से ज़्यादा उनका साइज़ बढ़ जाता है, तो आपकी फिर आप उसे मिसमैनेजमेंट कह लें या ये कह लें कि कुछ चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो आपकी पर यूनिट कास्ट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एवरेज कास्ट. तो उसे कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन कि आपको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन का फ़ायदा हो रहा है. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन कि आपने जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो उसके फ़ायदे के बजाय अब आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है और आपकी एवरेज टोटल कास्ट जो सी है वो बढ़ना शुरू हो गई है. इसमें अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई हो, आपने पीछे सारे जो कास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ ली हों, तो आप ये क्विज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द अनलेबल्ड रेड कर्व्स इन दिस फिगर, इसमें ये जो छोटे छोटे रेड कर्व्स दिए हुए हैं जो डिफरेंट प्लांट साइज को शो कर रहे हैं, ये क्या प्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट ऑफ वेरियस फर्म. ज़रा ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट तो नहीं है.
शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट ऑफ वेरियस फर्म कंस्टिट्यूटिंग डिफरेंट फर्म्स के जो है ये शॉर्ट रन कास्ट कर्व शो करें। ऐसा भी नहीं है, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व्स ऑफ वेरियस प्लांट साइजेस अवेलेबल टू अ पर्टिकुलर फर्म। ये सिर्फ एक फर्म की बात हो रही है कि जब वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करती है तो वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स इंस्टॉल कर सकती है। तो ये जो रेड कर्व्स हैं ये इसको शो करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट कर्व्स ऑफ वेरियस, हाँ ये मार्जिनल कास्ट कर्व नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अनलेबल्ड रेड कर्व इन दिस फिगर ड्राइव देयर शेप फ्रॉम। इनकी ये शेप जो यू शेप है ये क्यों है? फर्स्ट है डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग शॉर्ट रन रिटर्न्स। डिक्रीजिंग देन ये नहीं, ये शॉर्ट रन रिटर्न इसके शुरू में डिक्रीजिंग नहीं है। जब कास्ट कर्व डिक्रीजिंग हो तो ये रिटर्न्स इंक्रीजिंग को शो करते हैं। सी गलत है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग शॉर्ट रन रिटर्न्स। हाँ ये सही आंसर है कि जब आपकी कास्ट बिगिनिंग में हर कर्व डिक्रीजिंग शो कर रहा है एंड देन इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है कि जब कास्ट डिक्रीजिंग है तो इट इज शोइंग इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग शॉर्ट रन रिटर्न्स। सी है इकोनॉमीज देन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सी है डिस इकोनॉमीज देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये जो शॉर्ट रन कर्व है ये इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज को शो नहीं करते। लॉन्ग रन कर्व की बात हो रही होती तो आपका ये वाला आंसर भी करेक्ट होता। लेकिन इन द शॉर्ट रन इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात नहीं कर रहे। लॉन्ग रन कर्व पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ही आप सिर्फ लॉन्ग रन में कर सकते हैं, शॉर्ट रन में कर नहीं सकते। ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके मतलब इसमें आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दे आर वेरी इजी, दीज आर वेरी इजी। Third है the long run average total cost curve in this figure drives its shapes from number one decreasing then increasing short run returns। जब long run curve है तो short run वर्ड यहाँ पे आया इसका मतलब है कि इसका आंसर ही नहीं है। increasing then decreasing नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी इसका नहीं है। economies then diseconomies of scale। मैंने जैसा कि आपको शुरू में इसी क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर ये लॉन्ग रन की बात हो रही होती तो आपका आंसर जो था वो सी करेक्ट होना था। तो ये इधर उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो कर्व है यू शेप ये ब्लू कलर में, ये इसकी शेप क्या प्रेजेंट करती है कि शुरू में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं और आपकी एवरेज टोटल कास्ट कम होती जा रही है। लेकिन उसके बाद इस पॉइंट के बाद इट इज़ प्रेजेंटिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है और आपकी एवरेज टोटल कास्ट इज इंक्रीजिंग। डी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है। The long run average total cost curve is often called the firm's planning curve, capital expansion path, total product curve and production possibility curve। जिसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ये किसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं कि फर्म्स अपने लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व को सामने रख के ये प्लान करती हैं कि किस लेवल तक आउटपुट उनके लिए बेस्ट है फॉर देयर प्रॉफिट। ये इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इधर इसकी डेफिनेशन होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द इकोनॉमीज ऑफ mass प्रोडक्शन एक्सप्लेन द डाउन स्लोपिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व। As plant size increases, a number of the factors will for a time lead to lower average cost of the production। मसलन इसमें आपके क्या रीज़न आ जाती है कि आपका लेबर मोर स्पेशलाइज्ड हो जाता है और आप एफिशिएंट कैपिटल होता है, आपकी मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। Diseconomies of scale in time the expansion of a firm may lead to diseconomies and therefore higher average total cost। ये लास्ट पार्ट जो एवरेज टोटल कास्ट का होगा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका ये आपने क्विक रिव्यू देखना है कि मोस्ट फर्म्स हैव यू शेप लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट का। एवरेज टोटल कास्ट का अगर आपका यू शेप होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमीज एंड देन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आगे इकोनॉमीज ऑफ द स्केल किस चीज़ का नतीजा होती हैं और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट, more efficient capital equipment and the spreading of the startup cost among more units of output। इसमें अब लेबर की स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर एक जूते बनाने वाला है तो शुरू से लेकर एंड तक उस जूते का कटाई और उसको सिलना सब खुद करता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे एक फर्म में शूज़ हैं, बेशक उसमें आप लेबर बहुत यूज़ कर रहे हैं, हैंडमेड भी हैं,
तो उसमें एक लेबर होगा जिसका काम सिर्फ होगा कि उसको कटिंग करना, दूसरे का काम होगा उसको सिर्फ सिलाई करना। तो वो एक ही काम बार-बार करके उनकी स्पेशलाइज़ेशन होगी, दे विल प्रोड्यूस बेटर। इसके अलावा एफिशिएंट आपके पास कैपिटल इक्विपमेंट होगा। आप मतलब अगर एक सिंगल शख्स है तो उसके लिए जो मशीनरी है वो और तरह की होगी, लेकिन अगर बहुत ह्यूज पैमाने पे लार्ज स्केल की प्रोडक्शन के लिए और होगी, तो इस तरह आपकी एवरेज टोटल कास्ट शुरू में डिक्रीज होती है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर कास्ट बाय द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन दैट अराइज इन द लार्ज फॉर्म। जब फॉर्म बहुत बड़ी हो गई, उसमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक तो उसकी मैनेजमेंट मुश्किल हो गई, उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाएगा कि एक जो है शोभा आप उसे कह लें, उन्होंने अपना काम कर लिया, नेक्स्ट को पता ही नहीं था कि उन्होंने उन्हें फलां चीज़ सप्लाई करनी है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल विल अराइज। Minimum efficient scale is the lowest level of output at which a firm's long run average total cost is at minimum. ये हमारे तकरीबन जो कास्ट कॉन्सेप्ट्स थे ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों और अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इन टेबल्स को अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए फिल करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप इधर भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन?